My dear student, BLLB first semester, all of you students, as well as you learn about the matter of part of speech. In part of speech, I have talked about four main topics as the point of part of speech, like noun, pronoun, adjective, and the fourth is verbs. I have also learned about the study. So, in the definition of verbs, we can see about the verbs are the heart of the English sentences. It is a saying, very important saying, and it's also very important for the every sentences, because no any sentence will be complete without a verb. Means some of the sentences are the left that, but every sentence when it's include to express any action or any position or any other situation which is relevant to a state with the completely depend on a noun or pronoun, you can say that the a verb is usually defined as a word that express action or state about a noun. It's also depend on a state or the position of a noun or pronoun. Means a verb, a word which is expressly complete the action of a noun or pronoun. Means that without a verb, a statement or a action of the noun or pronoun did not be complete. Did not be completed. Means that cannot be complete because without any verb, a statement never be complete. As an example, Sita reads a book. Sita book is the part of it. Both are separately different, but if the reads is also also include in the sentence, the sentence will be complete, because Sita एक किताब पढ़ती है, that is perfectly complete sentence. So we can say that a verb is already as well as very important like the nouns or pronoun. जिस तरह से noun और pronoun किसी sentence या वाक्य के लिए important होते हैं, उसी प्रकार से ये क्रिया भी बहुत ही important होती है. किस चीज के लिए? उस सब्जेक्ट के कथन को पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं कि नाउन अथवा प्रोनाउन के उस स्टेटमेंट को या उसकी स्थिति को या उसकी अवस्था को दिखाने के लिए ही क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है. जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य इत्यादि का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं. तो verbs are also, मैंने एक चीज और यहाँ बोला, verbs are the heart of the English sentences. Means the English sentence never be complete without a verb. Simply it means कि बिना किसी, एक कहावत है कि बिना किसी जो है क्रिया के कोई भी वाक्य अंग्रेजी विधि में पूरा नहीं हो सकता. तो लेकिन अंग्रेजी में कोई वाक्य अगर है तो उसमें क्रिया अवश्य होती है, बिना उसके पूर्ण नहीं हो सकता. हम यही देखना चाहेंगे कि इसमें भी वैसे लिखा है कि यानी कि अब क्रिया जो है किसी कार्य के बारे में बोध कराती है, वो चाहे नाउन के हो या प्रोनाउन के हो, तो इसमें कार्य का होना पाया जाता है. तो इसीलिए उसे जो है एक स्टेटमेंट में, एक वाक्य में होना बहुत जरूरी होता है. अब इसके टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में देखते हैं. इसमें और एक चीज है कि verbs are so important that they may stand alone
be meaningful. देखिए verbs are also complete in self matters, means laugh, run or read, ये जो अपने आप में पूरा करते हैं कि पढ़ती है कार्य कर रही है, यानी कि हंसना, ये रोना, गाना, ये सब क्या है, ये सब सभी क्रियाएं हैं। और इसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, जब इसके काइंड्स में हम देखेंगे तो इसको कंप्लीटली देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब also we know that before yesterday I have also learned about the kind of verbs. In the matter of kind of verb we learn two type of verbs is already in English grammar, means that first main verb is also principal verb, and principal verb is also two type. First transitive verbs and second is intransitive verb. Second type of verbs is also helping verb. Helping verb means are auxiliary verb. What is auxiliary verb? Two types of auxiliary verb already in your English grammar. First primary helping verbs, and second is modal verbs. Now we discuss about the kinds of verbs in depth. Firstly we learn about main verb. What is main verb? Main verb What are principal verbs? कौन सी principal verbs होती हैं? A principal verb is that can express an action or a fact by itself or without the help of any type of verbs. Other verbs means that a principal verbs is also giving the full expression or a completing a statement by itself. अपने स्वयं के द्वारा ही वो पूरे वाक्य को उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देती है. दैट इज प्रिंसिपल वर्ब. Like that example we can see that Rajesh plays hockey, means Rajesh plays hockey. Means the plays is already a principal verb which is completing the full sentence, full statement. Means राजेश हॉकी खेलता है, तो यहाँ जो खेलता है वो क्या है, वही प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि जो मेन क्रिया है वो खेलना है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब इज ए मेन वर्ब व्हिच इज कंप्लीटिंग full meanings या completing the statement or sentences by its own self. अपने स्वयं के द्वारा ही अपना एक अर्थ मीनिंगफुल जो है स्टेटमेंट दे देता है, एक अर्थपूर्ण जो है सेंटेंस के बारे में कथन को प्रकट कर देता है. तो इस तरह से और देखते हैं. गीता रीड्स हर बुक. गीता रीड्स हर बुक. तो यहाँ जो रीड्स वर्ड है, रीड्स इज ऑलरेडी ए प्रिंसिपल वर्ब व्हिच इज कंप्लीटिंग द फुलफिल स्टेटमेंट ऑफ दिस सेंटेंस. यानी कि ये जो गीता किताब पढ़ती है, उसकी खुद की किताब पढ़ती है, दैट इज ए परफेक्ट वर्ड व्हिच इज गिविंग ए फुल स्टेटमेंट ऑफ a sentence. And next we see about the matter of kinds of principal verb.
kinds of principal verb, kinds of main verb. Main verb. Two types of principal verb means first transitive verbs. Transitive verb and intransitive verbs. Firstly, we see about the transitive verb. Transitive verb, a verb which requires an object to a fulfillment of a statement or a sentence. किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब में इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी नेसेसरी, यानी कि जो यहाँ ये जो सकर्मक क्रिया होती है जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया ये कर्म के साथ होगी, यानी कि इट्स आल्सो मस्ट बी कंप्लीट विथ ऑब्जेक्ट, यानी कि इट इज कंप्लीट इट्स मीनिंग विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी कर्म के साथ ही ये पूर्ण अर्थ देती है। दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके तुरंत बाद आफ्टर जस्ट द ऑब्जेक्ट विल बी कंप्लीट द फुल मीनिंग, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म अवश्य होता है, यानी कि उसमें कर्म जरूर रहेगा। सकर्मक यानी कि कर्म सहित, मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे कैसे? ए वर्ब which requires an object after it to be complete its meanings is called ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे आई रीड ए बुक। ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब आई रीड अ बुक, यानी कि जो ये रीड है तो इसके जस्ट बाद क्या है कि बुक है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि एक सकर्मक क्रिया के लिए कर्म का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। एंड सेकंड एग्जांपल इज ही टोल्ड ए स्टोरी, ही टोल्ड a story. Actually here we see the told is a verb which is transitive verb, because after that the transitive verb, the object is also presenting here, so we can see it is a transitive sentence, transitive verb sentence। अगला हम देखते हैं इंट्रांजिटिव, जहां पर कहीं भी कर्म के बिना ही, कर्म के यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, what is intransitive verb? Intransitive verb which does not require to an object to completing the sentence,
आर कंप्लीटिंग ए स्टेटमेंट, यानी कि जहां पर कहीं बिना कर्म के ही वह कथन पूरा हो रहा हो तो वह क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जहां किसी क्रिया को बिना किसी कर्म के ही सेंटेंस पूरा कर लेती हो, ऐसी क्रिया जो कि बिना कर्म के ही वाक्य को पूरा करती हो, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया के बाद तुरंत कर्म नहीं आता है, ऐसी क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो क्या होता है? वही अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कह सकते हैं intransitive verb which are one in a sentence when the object is not after that the transitive verb, after that the verbs, यानी कि क्रिया के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसी दशा में वह क्रिया जो होती है और कंप्लीट सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट हो जाता है वो, तो ऐसी दशाओं में इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसके लिए कहा गया है ए ट्रांजिटिव वर्ब, ए इंट्रांजिटिव वर्ब इज एन वर्ब दैट इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट फेजेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी दशा में जबकि क्रिया के जस्ट बाद कर्म नहीं होता है और वो वाक्य पूरा हो जाता है, तो ऐसी क्रिया जो अपने आप में ही पूर्ण हो, जिसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, ऐसी क्रियाएं ही, ऐसी वर्ब क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड फ्लाइज, और इसके अलावा रिवर्स फ्लो, चिड़िया उड़ती हैं और नदी बहती है। तो ये सब क्या है? यहाँ फ्लाई अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसके आफ्टर दैट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये क्या है? यही इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम आगे देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके कितने काइंड्स हैं? काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज आल्सो टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है कि जब आप ऐसे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो कि ऑलवेज हेल्प्स टू मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इट्स ऑलवेज helps to main verb, it's always help to main verb। ये क्या होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है कि हमेशा जो है मुख्य जो क्रिया है, जो प्रिंसिपल जो वर्ब है, उसको हेल्प करती है, यानी कि जो प्राइमरी प्राथमिक सहायक क्रिया होती है वो हमेशा प्रधान क्रिया की सहायक के रूप में होती है। एज वी नो, एग्जाम्पल फॉर दैट, एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ, तो at least many type of the primary helping verbs are also, you know very well, in our grammar,
फर्स्टली एग्जाम्पल दैट, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप आते ही रहे होंगे, कुछ भी कर लीजिए। राम इज गोइंग, तो इज क्या है, इज आल्सो ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब हम इसके अगला देखेंगे, इसके बाद जो आपका आज का ये लास्ट रहेगा, तो सेकंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका जो सेकंड टाइप है वो क्या है, वो आपका, वो आप देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स मैंने बताए हैं, मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स हैं क्या, मॉडल वर्ब्स क्या है कि मॉडल एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब व्हिच डज नॉट अफेक्टेड विद ए सब्जेक्ट। ये क्या है कि जब आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जान रहे थे, तो ये जानते हैं कि हमेशा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इज आल्सो डिपेंड ऑन या हेल्प्स टू ए मेन वर्ब व्हिच इज आल्सो डिपेंड ऑन ए सब्जेक्ट, जो कि किस पर निर्भर कर रही है, उस सब्जेक्ट पर निर्भर हो करके वो उसके तीन जो स्पेशली बताए गए हैं तीन चीजें, कि वो उसी पर निर्भर हो करके ही वो देती है, जो कि नंबर और जेंडर और पर्सन के ऊपर डिपेंड हो करके अपने रूप में परिवर्तित होती है। इट्स आल्सो कैन चेंज हिज नेचर विद द हेल्प ऑफ जेंडर, नंबर और ए पर्सन। बट ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही थी। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब इट कैन नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं होती है। इट्स आल्सो गिव particularly its meaningful and it's make a sentence meaningful itself by itself। क्या है कि ये ऐसे मॉडल वर्ब्स होती हैं जो कि स्वतः स्वयं में ही अपना अर्थ दे देती हैं, इसे किसी भी सब्जेक्ट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसमें एक और चीज कही गई है कि मॉडल वर्ब्स डिनोट्स a position or a condition or a tendency or a duty or a ability of a subject। किसी सब्जेक्ट के कुछ चीजों पर निर्भर करती है। वो किस चीज पर निर्भर करती है, पोजीशन हो, कंडीशन हो, टेंडेंसी हो, क्वालिटी हो, इन चीजों के बारे में अगर बता रहा है तो उसको दैट इज ए मॉडल वर्ब। जैसे मैंने कहा, इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो आपने देखा होगा मे माइट, विल, वुड, शुड, आर्ट टू बी, इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो है हमारे मॉडल्स दिए गए हैं, मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं, वो ऑलवेज यूज इन द ग्रामेटिकल इंग्लिश। हम जनरली सेंटेंस में हमेशा यूज करते रहते हैं, अपने जो हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश है उसमें हमेशा यूज करते रहते हैं, बहुत सारे जो है ऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कैन, कुड भी रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यू मे गो नाउ, इसमें एक चीज और पाएंगे, जब हमेशा ये अगर यहाँ मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही सेकंड में जो जैसे ही इसका जो मेन वर्ब है जैसे ही वो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, इतना ध्यान रखने की बात है। तो मे, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो ये जो मे है ये क्या है, यही दैट इज मॉडल वर्ब है ये। और एक और एग्जांपल, यू विल डू इट, तुम कर सकते हो। तो यहां विल क्या है, तुम करोगे, तो यहां
क्या कहने का मतलब है, जो विल है, ये विल एक जो है, विल जो है ये एक मॉडल वर्ब है। तो आज इस तरह से हमने जो आपको पढ़ाया, ये वर्ब के काइंड्स, वर्ब, व्हाट इज वर्ब एंड द काइंड्स ऑफ वर्ब एंड एग्जांपल ऑफ द वर्ब्स, ये सारी चीजें हमने बताई। तो अगले टर्म पे हम नया टॉपिक, इसी का जो 5वां खंड है, 5वां टॉपिक है, उसे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।